आजकल हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस में इतना क्राइम, कोई सर्वेंट अपने ओनर्स को मार देता है, कुछ हो जाता है। एक और बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से ही आ रही है, जहां एक बुजुर्ग महिला की उन्हीं के घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज की डेट में 60 एंड अबव इंडिया की पॉपुलेशन में खाली 11% लोग हैं, बट ये नंबर अगले 15 सालों में डबल होने वाला है। एक क्वेश्चन सर आपके डिस्कशन को सुनते हुए मेरे दिमाग में आया, इफ इन केस हाँ जी, सीनियर लिविंग के लिए प्रोडक्ट डेडिकेटेड है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे रहना चाहता हूँ, देन you are most welcome to stay. We want to live in a community where we are taken care of in terms of our emotional needs, loneliness needs, physical needs. Monthly rental for single room accommodation 1.5 से पौने 2 लाख रेंज करता है। मंथली रेंटल सिंगल दैट्स टू हाई, जिसमें खाली सिंगल रूम है, जिसमें कोई लिविंग रूम नहीं है, खाली वो एक फैसिलिटी है जिसमें आपको एक रूम मिलता है। Hello viewers, my name is Vipin Chaudhary and I'm the founder of Asset Daddy. Today we have a very special guest from Pioneer Urban, Mr. Ashok Bindra. He is the Vice President of Sales and Marketing in Pioneer Urban. आज उनसे हम बात करते हैं कुछ एक्सटेंशन रोड की इनसाइट्स के बारे में। आइए। So, hello Vipin, thank you for this opportunity. I'm very happy to be talking to you today. Asset Daddy has done a lot of work in our industry, and you have been educating your viewers and the general public on various real estate offerings in the area, and I think your viewers look forward to new information in every episode from you, and I'm glad that today I'm going to be part of this journey with you. Thank you sir, thank you very much for your words. So before going to start with the introduction of company, I just wanted to know my viewers about you, how you started your career, how you came into this industry. Some of you might know I have spent my entire life in media, basically in print. I was for a very long associated with Hindustan Times at various positions. Last, I was the CEO of the financial paper Mint, which is a very, very well-respected financial paper. In between, I was a North Head at India Today also. And then last 6-7 years, I have been with the Times of India. And I have recently retired from there as Director Sales for the entire North region. So real estate has been a passion for me because in 2000 when I joined Hindustan Times, I was heading the real estate vertical. I launched our first real estate supplement, HT Estates. 2000 was the year 2001-2 when real estate started developing, because उससे पहले 3-4 ही builder होते थे. There was Ansars, there was DLF, there was Unitech, और बहुत कम builders थे. 2000 से एक वेव आई नोएडा और इंदिरापुरम की तरफ और इस पूरे एरिया में, and lot of new players came into being. There was Supertech, there was Mahagan, there was ATS, there was Eldeco, Ashiana. तो बड़े सारे. तो I was very, very closely associated with all of them. We did the journey of growth with a lot of real estate developers together. And that is when, I was very closely associated in Gurgaon also with Mr. Sanjay Chandra at Unitech. And when he came back from the US, and when the first project they launched was Uniworld City. And then I met Manish was partners with Unitech at Pioneer, and we were some of the landowners, and a lot of projects we did in collaboration with Unitech. तो मनीष जी ने 2006 में मेरे को बोला था, बहुत हो गया मीडिया, you come and now we are starting on our own and you come and join us. तो I contemplated also. फिर 2008 में उन्होंने फिर अप्रोच किया, जब पायनियर 2007 में जब पायनियर पार्क का लॉन्च होना था, कि जब वो एकदम अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे, तो तब भी मैंने उनको यही बोला, अभी तो मैं मीडिया में आई वाज ग्रोइंग वेल, आई वाज डूइंग वेरी वेल. तो मैंने बोला था एक बार जब मेरी मीडिया इनिंग्स खत्म हो जाएगी तो तब मैं सबसे पहले जरूर आपके पास आऊंगा. एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. आई कंप्लीटेड 35 years in media, and also I was very excited about the current project he was doing. He was doing a project on senior living, which is a very, very passionate subject for me personally, and where I thought that I have lived all my life in corporate, and there is a little bit of giving back to the society also which has to happen. And I thought that let me, who better than to understand somebody who is in the same age group, that what are the needs of seniors, and especially active seniors, because हमारी जनरेशन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से थोड़ी अलग है, कि जहाँ पे लाइक माय डैड व्हेन ही रिटायर्ड, तो ही वाज ओनली इनटू स्पिरिचुअलिटी. वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो
सोशल सर्विस ही करते रहे. But you know, I am so fond of traveling, wildlife. I enjoy my parties also and everything. Yes, I am into spirituality as well, and I do a lot of jyotirlings and temples and all that. But I want to live my life also. I want to be with friends. I want to have a very active life. So I think जो मेरे टाइप के लोग हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं. Some of my friends, the children are abroad. My own daughters are in Bangalore. One is married, and it's only me and my wife now. So these empty nester couples, we are looking for a place जहाँ पे हम सिक्योर फील कर सकें और जहाँ पे एक हमारी लाइक माइंडेड कम्युनिटी हो, जहाँ पे हमारे लिए एक्टिविटीज प्लान्ड हो. तो जहाँ पे जो सीनियर्स की बड़ी सारी इश्यूज होती है, लोनलीनेस एक इशू होती है, वो एड्रेस हो जाती है. व्हेन यू आर लिविंग इन अ कम्युनिटी और लोनलीनेस गेट्स एड्रेस्ड. सिक्योरिटी एक इशू है. आजकल हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस में इतना क्राइम, कोई सर्वेंट अपने ओनर्स को मार देता है, कुछ हो जाता है. तो सिक्योरिटी बड़ी इशू है. फिर ये सर्विसेज बड़ी इशू है कि देखते हैं मेड हम रखते हैं, कभी मेड छुट्टी पे चली गई, कभी मेड आई नहीं, वो बर्तन कौन मांजेगा. तो ये जो कम्युनिटीज, हम जिस टाइप की सीनियर लिविंग कम्युनिटीज आ रही हैं, उसमें हाउसकीपिंग सर्विसेज होती हैं, उसमें किचन होता है, रेस्टोरेंट होता है, कैंटीन होती है, जहाँ पे आप सारी मील्स खा सकते हो. यू नो, इन कम्युनिटीज में एक ऐसी लाइफ होती है कि जहाँ पे आप आओ, मूव करो, आपके लिए रोज सारा दिन एंगेजमेंट प्लान है. सुबह योगा शुरू हो रहा है, फिर साथ मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लोग, फिर कोई कीर्तन हो रहा है, फिर शाम को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग चेस खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फिर शाम को बार में ड्रिंक भी एंजॉय कर रहे हैं, फिर कैरियोके रूम है या मूवी थिएटर है, मूवी एंजॉय कर रहे हैं. तो बेसिकली लोग अपनी लाइफ को एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करने के बाद गिल्ट फ्री तरीके से एंजॉय कर सकते हैं. और फिर बच्चों के लिए ये सिक्योरिटी होती है, कभी कुछ एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो उनको पता है हर रूम में एक बटन दबाना है, इमीडिएटली डॉक्टर आ जाएगा. एम्बुलेंस 24/7 वहां पे है. कुछ सीरियस इमरजेंसी हो जाए तो इमीडिएटली उनके लिए सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि आजकल बच्चे साथ तो रहते नहीं है. तो उनको हर टाइम में डर होता है कि जब तक एक कॉल आएगी, चाहे सेम शहर में रह रहे हो, जब तक वो पहुंचेंगे 1-1.5 घंटा बड़ा वैल्यूएबल टाइम लॉस्ट हो जाता है अगर कोई इमरजेंसी हो. और काफी होंगे तो बच्चे अब्रॉड होते हैं. तो ऐसे में ये जो कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं, ये सारी नीड्स को एड्रेस करती हैं. हम लोगों ने देखो काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई है. पीपल लाइक मी हु हैव डन वेरी वेल इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स हैव हैड basic financial securities there. Now we want to, and we have settled our children also. So we want to live in a community where, you know, we are taken care of in terms of our emotional needs, loneliness needs, physical needs. Secondly, we have security also. And third, we have medical facilities also so that our children can be assured. अब वो बैंगलोर में उनको, अगर मैं ऐसी किसी सोसाइटी में रह रहे हूँ या बाकी जैसे लोग हैं, तो उनको एश्योरेंस होगी यार कोई टेंशन की बात नहीं है, बाई चांस कुछ हो जाए तो इमीडिएटली यहाँ पे केयर प्रोवाइडेड होगी और इमीडिएटली कोई हॉस्पिटल ले जा सकता है. जब तक वो आएंगे दे विल बी वेल टेकन केयर. लाइकवाइज कोई भी जो भी एनआरआईज है जो बाहर रहते हैं, पेरेंट्स उनके लिए भी बहुत अच्छा है. जो एनआरआईज है तो उनको तो आने में वैसे ही 2-3 दिन लग जाते हैं वहां से, जब तक वो प्लान करते हैं. और तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हो जाती है. देखो देयर इज एन नंबर ऑफ लाइक कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज इन गुड़गांव मार्केट, जहाँ पे वो पूरा दिन सुबह से शाम तक अपने ऑफिस के अंदर होते हैं, पेरेंट्स घर पे होते हैं. हाँ, तो उनके लिए भी वो है कि जो लोग, मैं तो बता रहा हूँ, सेम सिटी में भी जो रहते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कुछ लोगों ने जो खरीदा है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए खरीदा है, बड़े सीनियर लेवल पे हैं, एक है BMW में सीनियर लेवल पे थे, उन्होंने खरीदा कि ये सोच के कि एक अच्छी जगह में रहे जहाँ पे उनके पेरेंट्स विद इन गुड़गांव रहते थे, तब भी उनको ये सोचा है कि यहाँ पे रहेंगे तो और सिक्योरिटी रहेगी और ऑन टॉप ऑफ दैट उनके लिए कम्युनिटी लाइफ भी रहेगी कि जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग. अब मेरे पास कल एक क्वेरी आई थी कि बोथ ऑफ देम वेरी सीनियर IITians, IIT से उन्होंने पढ़े हुए थे, ऑलमोस्ट 70 इयर्स के थे. सीमेंस एक बहुत अच्छी बड़ी जर्मन कंपनी है, उससे रिटायर हुए हैं. एंड बोथ फ्रेंड्स एंड देयर वाइफ दे वर लुकिंग एट, दोनों के सबके बच्चे दोनों के अब्रॉड है, US में है. तो उन्होंने बोला निर्वाणा में ही रहते हैं, अपनी कोठी में रहते हैं. बोल रहे हैं अब हम कोठी बेच के हम यहाँ पे आना चाहते हैं ताकि हम अपनी बैलेंस लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकें. और हमें उसको कोठी की जो मेंटेनेंस होती है, रोज कुछ हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, ये हो रही है, उसकी उन सब से झंझटों से बच जाए, नहीं तो कौन मैनेज करेगा. तो इस टाइप की ना, देखो ये माइंडसेट एकदम से इवॉल्व हो रहा है. क्योंकि इंडिया में पहले क्या था, ओल्ड एज होम्स और ओल्ड एज लिविंग पहले भी थी, पर लोग क्या करते थे, हरिद्वार, वृंदावन ऐसे एरियाज डेवलप हो गए थे नॉर्थ में, कि लोग जाते थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे. बट आजकल क्या है, लोगों को सिंपल लाइफ नहीं जीनी. आजकल लोगों को थोड़ा सा मिक्स चाहिए. ऐसा नहीं है कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लाइफ थी जीने का, बट वहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज आपके लिए नहीं थी. हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, एंगेजमेंट नहीं थी. अब आप सारा दिन जॉब तो नहीं कर सकते ना, मतलब कि कर भी सकते हैं कुछ लोग, लेकिन
मेरे को नहीं लगता कि मेरे टाइप के जनरेशन के लोग खाली 100% उसमें बिलीव करेंगे। हमारी जनरेशन बिलीव करती है थोड़ा बैलेंस में कि वी वांट टू एंजॉय आल्सो लिटिल बिट, येट वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स आवर किड्स एंड आवर सोसाइटी, वी आर कॉन्शियस अबाउट ग्रोइंग इन लाइफ स्पिरिचुअली आल्सो, येट वी वांट टू मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो ये प्रीमियम सीनियर लिविंग या लग्जरी सीनियर लिविंग की कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इस मार्केट का आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल होने वाला है। बिकॉज अगर आप डेटा देखोगे तो आज की डेट में 60 एंड अबव इंडिया की पॉपुलेशन में खाली 11% लोग हैं, बट ये नंबर अगले 15 सालों में डबल होने वाला है। करेक्ट। इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम में 160 करोड़ के करीब होगी, तो उसमें से अगर 20% लोग सीनियर होने वाले हैं तो ऑलमोस्ट 35 करोड़ लोग इस कैटेगरी में होंगे। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो आई फील कि इस सेगमेंट का बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड होने वाली है। इवन इफ आई लुक एट सीनियर लिविंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट, तो हमने जो देखा है जो एल्डर केयर सर्विसेज या अभी जो सीनियर केयर रेंटल मॉडल्स हैं, इसमें ना एक रेंटल मॉडल भी होता है कि जहाँ पे लोग जाते हैं मंथली रेंटल देते हैं। मंथली रेंटल फॉर सिंगल रूम एकोमोडेशन 1.5 से पौने 2 लाख रेट रेंज करता है। मंथली रेंटल सिंगल रूम, जिसमें खाली सिंगल रूम है, जिसमें कोई लिविंग रूम नहीं है, खाली वो एक फैसिलिटी होती है जिसमें आपको एक रूम मिलता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक अच्छी 2 बेडरूम प्लस केयरटेकर रूम प्लस लिविंग रूम, एक 2000 ऑलमोस्ट 1900 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट की। तो मेरे हिसाब से जो गुड़गांव में अगर एवरेज रेंटल यहाँ पे 60-70 हजार होगा उस स्क्वायर फीट का, तो ऐसी प्रॉपर्टी को 2 लाख के करीब रेंटल मिल सकता है। तो अगर आप रेंटल यील्ड देखें ऐसी प्रॉपर्टी की, तो जहाँ पे टिपिकल रेंटल यील्ड्स 2% के करीब होती है, यहाँ पे 4 से 5% तक की रेंटल यील्ड आ सकती है। Correct, तो सीनियर लिविंग उस तरीके से भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है अद्वैत, तो अद्वैत की तो लोकेशन इतनी यूनिक है, ये निर्वाणा में बस बहुत कम ही लैंड बचा है, सेक्टर 50 है। निर्वाणा इतना मतलब कि लो डेंसिटी है एज ए सेक्टर जहाँ पे, और ग्रीन बहुत है एज ए सेक्टर। इट इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सेक्टर ऑफ गुड़गांव विद लॉट ऑफ ट्रीज एंड ऑल दैट, और बड़ी अच्छी है कम्युनिटी और शॉपिंग सेंटर्स वो सब हैं। और सीनियर्स के पर्सपेक्टिव से कम 7-8 हॉस्पिटल हैं 5 किलोमीटर के रेडियस में। फिर आर्टेमिस है, यहाँ पे फोर्टिस है, मेदांता एकदम पास है, लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड है। तो आई थिंक एक सीनियर्स के लेवल दे आर इन द मिडिल ऑफ एवरीथिंग। शॉपिंग सेंटर्स आसपास हैं, हॉस्पिटल्स आसपास हैं, वॉकिंग ट्रैक्स, गार्डन्स, हर चीज वहां पे है। तो इट इज अ मोस्ट यूनिक लोकेशन फ्रॉम अ सीनियर लिविंग पर्सपेक्टिव। बाकी हार्ट ऑफ गुड़गांव में कोई और अभी सीनियर लिविंग कम्युनिटी नहीं आ रही। तो उस तरीके से आई थिंक आपका ही सबसे फर्स्ट है, राइट? हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट है। बट पायनियर आपको मालूम है कि पायनियर इज नो स्ट्रेंजर, सो आई वुड रेट पायनियर एज अ बुटीक रियल एस्टेट डेवलपर। सो although we had a lot of land bank, but हम एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करते हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहे तो मैं आपको पायनियर की लेगेसी थोड़ा बताता हूँ। देखो 2007 में हमने पायनियर के नाम से अपनी डेवलपमेंट पहले यूनिटेक के साथ मिलकर सारी डेवलपमेंट थी, क्लोज, निर्वाणा, ये सब डेवलपमेंट्स हमारी थी। रोजवुड सिटी आप लोगों ने डेवलप किया है? रोजवुड तो उनका था, हमारा निर्वाणा था। निर्वाणा, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, ये सब हमारे डेवलपमेंट्स थे। तो पायनियर ने 2007 में पायनियर पार्क लॉन्च किया, तो वो हमारा फर्स्ट आई वुड से मिडिल इनकम या प्रीमियम उस टाइप की हाउसिंग थी। फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट इवॉल्व हुई, इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई और एक प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड आनी शुरू हुई, तो हम लोग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में आईरियो के बाद वी वर द सेकंड डेवलपर टू कम आउट विद पायनियर प्रेसिडिया, व्हिच वाज द फर्स्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद हम लेके आए पायनियर अराया, एंड अराया हमने डिलीवर किया था आई थिंक 2019 या 18-19 में। तो आज की डेट में अराया अगर आप देखोगे तो इस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी है। बिकॉज अगर बाकी आसपास की प्रॉपर्टीज 20-22 हजार के रेंज में बिक रही हैं, तो अराया का आज 35,000 रुपए का रेट है पर स्क्वायर फुट। 35,000 रुपए का। इसका मतलब आज हमारी अराया कंपटीशन देती है ट्रम्प टावर्स को। आजकल मतलब कि हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो मतलब कि इसको डीएलएफ पार्क प्लेस और इन सब से ज्यादा प्रेफरेंस देते कि इट्स अ मच बेटर डेवलपमेंट। तो मैं आपको ना थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि पायनियर की यूएसपी क्या है। तो पायनियर की जो एक मेन यूएसपी वो ये है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद
जो एक हम एक्सपीरियंस देते हैं अपने रेजिडेंट्स को, बी इट द लैंडस्केपिंग, बी इट सिक्योरिटी सर्विसेज, बी इट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, बी इट द क्लब मैनेजमेंट, पायनियर की वैल्यू क्रिएट हुई। हमने जो इसका क्लब डिलीवर किया, ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब जियॉन, उसमें सारी सर्विसेज हमने खुद मैनेज करी हुई हैं। उसकी पूरी केटरिंग हमारी अपने स्टाफ है, वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ शेफ्स, हमने किसी थर्ड पार्टी का आउटसोर्स नहीं करी है। तो ये जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं वो सारी जो हमने खुद मैनेज करी, तो उससे जो हमने प्रीमियम एक्सपीरियंस और एक क्वालिटी डिलीवर करी है, उसके बेसिस पे पायनियर और आया की सारी वैल्यू क्रिएट हुई है। नहीं तो ये भी उसी रेट पे होता। ये सारा जो डिफरेंस क्रिएट होता है, अब आप देखोगे प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लोग सोचते हैं लोकेशन और लैंड की वैल्यू है, खाली लोकेशन और लैंड की वैल्यू नहीं होती है उसकी, बिकॉज प्रोडक्ट के अलावा थर्ड वैल्यू होती है प्रोडक्ट और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, बट सबसे ज्यादा वैल्यू होती है एक बार जो आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो और क्या एक्सपीरियंसेस देते हो लोगों को, उसके बाद लिविंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। आज की डेट में who's who यहाँ पे पायनियर अराया में रहते हैं, E&Y के डायरेक्टर्स से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और ये सब, तो बेसिकली ये वर्ड ऑफ माउथ से ऐसे हुआ है कि सबको लगता है जो एक बार किसी पार्टी में घर किसी अराया के घर को विजिट करता है तो इमीडिएटली बोलता है यार रहना यहीं ही रहना है। तो लोग बड़े बड़े नामी कॉन्डोमिनियम्स को छोड़ के यहाँ आना चाहते हैं और एक वेटिंग लिस्ट है, मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि कोई भी यूनिट रीसेल में आए, तो वो हो रहा है कि एक लिविंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा। अब आप देखो 22 एकड़ में खाली 400 अपार्टमेंट है, 22 एकड़ में 400 अपार्टमेंट, वेरी लो डेंसिटी, कोई जुड़े टावर्स नहीं है, सब टावर्स खुले तो इट्स अ वेरी वेरी यूनिक। जो हमारा बिलीफ रहा है मनीष जी का, मनीष बेरीवाल और प्रमोटर, फ्रॉम beginning he is hired the best of US architects, the best of construction quality and everything. तो उनका ना एक विजन रहा है। अगर आप देखोगे विस्टा विलास नाम की एक प्रॉपर्टी थी सेक्टर 45 के पास और ग्रीनवुड के पास, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट विजनरी प्रॉपर्टीज। वो एकदम यूएस स्टाइल में विलास बने हुए हैं जिसमें कॉमन गार्डन है, उसके अराउंड विलास बने हुए हैं। जब देखिए जब प्रॉपर्टी डिलीवर हुई तो ऐसा लगता था उस टाइम पे कि यू हैव कम इनटू, जैसे अमेरिका में हम मूवीज में देखते हैं उस टाइप का। तो मनीष जी का विजन ऐसा रहा है कि उन्होंने उस टाइम पे एक विजनरी प्रॉपर्टी देते हैं। यहाँ पे भी जो उन्होंने काम किया एक विजनरी था। और अभी हम अद्वैत में अब सीनियर लिविंग में हम एक लग्जरी और एक विजनरी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आपके VRV एयर कंडीशनिंग तो है ही सेंट्रली, बट उसके साथ एक TFT है, ट्रीटेड फ्रेश एयर है, तो जिसमें आपका AQI पूरा टाइम मेंटेन रहेगा। अब सीनियर्स के लिए AQI बड़ा इंपॉर्टेंट है। AQI गुड़गांव के अंदर में अगर आप सपोज 250 या 300 है तो वहां पे 60-70 के अंदर मेंटेन रहेगा घर के अंदर में। ओके। और फिर जैसे पानी की यहाँ पे वो बोला वी हैव गॉट ड्रिंकिंग वाटर इन एवरी टैप। तो जैसे सीनियर्स हैं उनको किचन तक भी जाने की जरूरत नहीं है। आप वॉशरूम से, जैसे अमेरिका या यूरोप में होता है कि आप टैप में अपना नलका लगाओ और पी लो। तो एक बेसिक चीज हमने करी है। अब आप क्लब देखोगे 164 अपार्टमेंट्स हम वहां पे अद्वैत में प्लान कर रहे हैं, जिसमें 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ डाइनिंग फैसिलिटीज, हर टाइप की। एग्जैक्टली क्या है क्लब के अंदर जो आपने सीनियर लिविंग को डेडिकेटेड किया थोड़ा? तो देखो डेडिकेटेड उसमें सीनियर लिविंग के लिए क्या है, ऑब्वियसली क्लब के 3-4 पार्ट्स होते हैं। एक तो जिम या हेल्थ वाला पार्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो जाती हैं, पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। डाइनिंग फैसिलिटीज हैं, तो 2-3 वेरियस डिफरेंट टाइप की डाइनिंग फैसिलिटीज है वहां पे, हर टाइप की। फिर एडेड जो है इसमें हाइड्रोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी रूम है, स्पा तो होता ही है उसमें, उसके अलावा मेडिकल रूम्स हैं और ये सब एक्स्ट्रा हैं सीनियर्स के लिए। फिर सीनियर्स के हिसाब से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं जिसमें बैडमिंटन है, ये जितने भी है। फिर एक डेडिकेटेड कैरियोके लाउंज है कि सीनियर्स को अपना टाइम पास करना है, आजकल लोगों को गाने वाने का शौक, और अपना पार्टी रूम्स हैं, फिर कार्ड्स रूम्स हैं और इस टाइप की फैसिलिटी जहाँ पे सीनियर्स इंडोर ज्यादा करते हैं। फिर जो हमने जो डेवलपमेंट बनाई है 2.5 एकड़ में, ऊपर व्हीकुलर मूवमेंट एकदम नहीं है। वो एंट्री से निकलेंगे सीधा बेसमेंट में जाएंगे, इवन विजिटर पार्किंग बेसमेंट में है, सब कुछ ऊपर एकदम फ्री रखा है, फ्री फ्रॉम व्हीकुलर मूवमेंट, ताकि सीनियर्स कैन अनरेस्ट्रिक्टेड, वहां पे कोई गिरने का डर नहीं, कहीं टकराने का डर नहीं। इस तरीके से लैंडस्केपिंग भी और वो भी मेंटेन्ड है कि उनके लिए मिनिमम रिस्क होगा। हर जगह एंटी स्किड टाइल्स या फ्लोरिंग का वो है। मतलब कि हमने अपनी तरफ से पूरा ये रखा है, चाहे अपार्टमेंट के अंदर चाहे प्रेमाइसेस या गार्डन्स में, उनको कोई भी डेंजर ना हो, कि सब एकदम सिक्योर फील करें।
or they can enjoy a lot of sitting areas in the garden also. Pagodas are there and where they can come enjoy. So that kind of product I we have have one created. question, sir. हाँ जी, You have only 2 BHK, हाँ जी. which is bigger than a normal standard size के जो 3 BHK होते हैं, उससे बड़ा आपका 2 BHK. क्या रीजन रहा 2 BHK ही तो बनाने देखो का? 2 BHK हमने एक स्टैंडर्ड साइज ही रखा है. तो we have looked at it from this perspective कि काफी सीनियर्स के साथ हो सकता है कि उनका मतलब कि एक सन या डॉटर भी रह रहे हो. तो एक सेकंड बेडरूम हमने रखा है कि कोई फैमिली उनके साथ अगर रह रही है तो वो भी रह सके, नहीं तो वो उनके लिए गेस्ट रूम के लिए सेकंड रूम काम आ सकता है. तो थर्ड रूम भी रखा है हमने, वो नॉर्मल सर्वेंट रूम से बड़ा है, वो केयर टेकर रूम है, उसके साथ भी अटैच बाथरूम है और थोड़ा बड़ा है नॉर्मल टिपिकल सर्वेंट रूम से, विच कैन बी यूज्ड एज अ बैकअप फॉर चाहे वो बच्चे के लिए यूज हो सकता है या जैसे एक छोटी फैमिली है जिसमें पेरेंट्स के लिए एक रूम हो गया और एक रूम हस्बैंड वाइफ के लिए हो गया, उनके बेटे या बेटी के लिए, और साथ में एक बच्चे का रूम, उसका एज ए बच्चे यूज कर सकते हैं अगर 7 क्वार्टर नहीं यूज करना है. सीनियर्स जो थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक ये प्रोविजन बन सकता है रहने का. और नहीं तो वो गेस्ट रूम की तरह यूज सकता है. नहीं तो आजकल तो लेटेस्ट काफी ये भी ट्रेंड्स हैं कि जहाँ पे कपल्स भी अपने सेपरेट बेडरूम्स मेंटेन करना पसंद करते हैं और जहाँ पे उनको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि सोसाइटी आजकल बहुत तरीके से चेंज हो रही है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो इट कैन बी काइंड ऑफ यूज्ड. तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ. एक क्वेश्चन सर आपके डिस्कशन को सुनते हुए मेरे दिमाग में आया, इफ इन केस हाँ जी, सीनियर लिविंग के लिए प्रोडक्ट डेडिकेटेड है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे रहना चाहता हूँ, देन you are most welcome to stay. हाँ, तो देखो सीनियर लिविंग में क्या होता है, as per guidelines also कि one person who is staying has to be 55 plus. अब जैसे कभी कभी क्या होता है, unfortunately somebody loses one parent and only one parent is there and he is staying, you are staying, or somebody is staying with their just mother or father, and if unfortunately if they've lost, then it's a very ideal thing कि एक parent भी रह रहे हैं, उनके लिए पूरी facility है. husband wife आजकल हमने देखा रेगुलरली ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, दे कैन गो टू वर्क एंड देन दे कैन बी वेरी सिक्योर दैट देयर मदर और फादर बिहाइंड देम व्हेन दे वांट टू वर्क इज फीलिंग सिक्योर इन द सीनियर लिविंग एंड दे आर आल्सो स्टेइंग टुगेदर विद देम. दैट इज आल्सो पॉसिबल. एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको. हाँ जी. इफ इन केस आई एम 60 or 65, हाँ जी, मेरे बच्चे रहते बाहर, मुझे आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, बाय करनी है, मुझे लोन नहीं मिलेगा सर इस एज के अंदर. मैं रहना तो चाहता हूँ मैं आपकी प्रॉपर्टी के अंदर. तो प्रॉपर्टी तो आपका बच्चा खरीद सकता है ना. प्रॉपर्टी कोई भी खरीद सकता है. प्रॉपर्टी ओनरशिप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. खाली जो रिस्ट्रिक्शन एक है कि जो रह रहा है वहां पे उसमें से 1% शुड बी 55 एंड प्लस. देखो ये कम्युनिटी सीनियर्स के लिए डिजाइंड है. तो इसमें आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें इतनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं तो इसकी मेंटेनेंस नॉर्मल मेंटेनेंस से थोड़ी ज्यादा होती है. नॉर्मल जगह में आजकल सोसाइटीज में 4 रुपए से लेके 5-6 रुपए एवरेज होती है, तो यहाँ पे 8 से 9 रुपए आएगी. तो एक जो रेगुलर फैमिली है तो उसके लिए मार्केट में और ज्यादा ऑप्शन है और यहाँ पे रेंटल भी थोड़े हाई होंगे. अगर कोई रेगुलर फैमिली इसको लेना चाहती है तो वैसे भी आई डोंट थिंक वो लोग प्रेफर करेंगे, बिकॉज दे कैन स्टे विद देयर पेरेंट्स. इट इज गुड, बट उनको ये माइंडफुल होना पड़ेगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस थोड़ी हाई होने वाली है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज मच हायर एंड थोड़ी सी डेडिकेटेड सीनियर फैसिलिटीज भी हैं यहाँ पे. तो जिनकी जैसे एम्बुलेंस फैसिलिटी 24/7 रखनी है, 24/7 नर्सेज रखनी है, रोज डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूम वहाँ पे डेडिकेटेड है, तो उनका जो कॉस्ट है वो तो सारे रेजिडेंट्स शेयर करेंगे ना, इन अ शेयर्ड कम्युनिटी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. सो अभी के कंपटीशन मार्केट को देखते हुए जिस तरीके के भी सराउंडिंग में चीजें चल रही है, बैक टू बैक लॉन्चेस है मार्केट के अंदर में, कुछ आपके लिए भी उससे कंपटीशन क्रिएट होता है? क्योंकि आपकी जो थीम है कंपटीशन क्रिएट होता है. देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, इस प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट्स में फर्क ये है कि दूसरे प्रोडक्ट में कोई रेगुलर प्रोडक्ट में एंट्री थोड़ा कॉन्फिडेंस से लोग मान लेते हैं कि ये सोच के अगर नहीं समझ में आएगा तो 3 इंस्टॉलमेंट के बाद बेच देंगे, ये कर देंगे, इजी लिक्विडिटी होती है. इसमें क्योंकि ये सीनियर प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी, जबकि ऐसा है नहीं. टिपिकली हम इसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं बेचना चाहते, इसको एज एन एंड यूजर, बिकॉज हमें कम्युनिटी क्रिएट करनी है. रेगुलर प्रोडक्ट में क्या होता है, कम्युनिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है लाइक माइंडेड पीपल से. धीरे धीरे जो इन्वेस्टर होते हैं एग्जिट कर जाते हैं, एक टाइप के लोग आते हैं, सर्विसेज देखते हैं, प्राइस डिस्कवरी होती है, तो उसी टाइप के एंड यूजर आते हैं. इसमें भी ये होगा, बट इसमें
अगर रेगुलर प्रोजेक्ट में 50% इन्वेस्टर और 50% एंड यूजर होता है, तो यहाँ पे आई थिंक 75% एंड यूजर और 25% इन्वेस्टर है। जो इन्वेस्टर भी है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ऐसा इन्वेस्टर आ रहे हैं जो इसको आगे लीज पे देंगे या उसको रन करेंगे, और दे विल लुक एट अ सुपीरियर रेंटल यील्ड एंड अ सुपीरियर एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म। सो आपको क्या लगता है अप्रिसिएशन के मामले में पोजीशन टाइमलाइन तक क्या प्राइसिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की? तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो किसी भी प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन बुरे प्रोजेक्ट में 5-6% होती है, अच्छे प्रोजेक्ट मीडियम में 9-10 और बहुत अच्छे में 12-13%। रेंज यही रहता है ईयरली जो होने हाँ, वाली है। ईयरली मतलब कि ओवर लॉन्ग टर्म 10 साल के पीरियड में अगर आप लेंगे तो 10 साल के पीरियड में तो यही रिटर्न बनता है। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई फील दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई गैप might have the potential after delivery of 14 to 15% CAGR growth. एक्सटेंशन रोड पे सराउंडिंग्स में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है नियरली 16,000 रुपए 18,000 रुपए, जो पुराने प्रोजेक्ट्स से डिलीवर हो चुके हैं, जो रेडी टू मूव इन है। बट मार्केट से एक अलग ट्रेंड पे प्रॉपर्टीज चल रही है दो एक्सटेंशन रोड पे, ट्रम्प टावर्स एंड योर प्रेसिडियन अराया, जो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट है फ्रॉम मार्केट। इनके रेट 30,000 32,000 36,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। इनमें ऐसा क्या है कुछ खास जो इस तरीके की प्राइसिंग रही है आपकी? देखो मैंने आपको बताया पहले कि एक होता है प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डिलीवरी, दूसरा होता है वहाँ का लाइफस्टाइल, किस टाइप के लोग आते हैं, फिर किस टाइप की हम सर्विसेज देते हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज है। जैसे ट्रम्प टावर तो मैं इतना नहीं कमेंट कर सकता, वो उसमें एक मतलब कि थोड़ी सी उसमें ब्रांड की वैल्यू है, बट मेरे हिसाब से इंडियन कस्टमर्स अभी भी ब्रांड से ज्यादा एक्सपीरियंस को वैल्यू देनी चाहिए। राइट। तो एक्सपीरियंस में क्या होता है कि जो भी आपको उस प्राइस की वैल्यू मिल रही है इट इज टेंजिबल। ब्रांड में क्या होता है वो इनटेंजिबल होती है वो वैल्यू, खाली एक वो स्नॉब वैल्यू, उसकी कोई रियल चीज रिटर्न में नहीं मिल रही। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, सुपीरियर सर्विसेज है, एक लाइफस्टाइल है, एक लो डेंसिटी है। अब जैसे जो हम डेंसिटी लो डेंसिटी अराया की है या प्रेसिडिया की है, जो एक खुलापन है, और जो 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब फॉर वेरी फ्यू रेजिडेंट्स एंड टोटल अगर आप कम्युनिटी साइज देखो, एवरेज 2 से 2.5 बंदा 3 बंदा ही रहता है, आजकल इतने होते नहीं। तो फॉर 1200 1300 एवरेज पीपल यू हैव 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब एंड सो मेनी सर्विसेज, टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग फुल फैमिली वो काउंट करके। क्या अपार्टमेंट के साइज बड़ा और छोटा होने से भी प्रीमियम पे फर्क आता है? जैसे कि रिसेंट के मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम डीएलएफ की तरफ चलते हैं। डीएलएफ के अंदर में 4 BHK बिगर अपार्टमेंट 3,000 प्लस स्क्वायर फीट का एरिया आता है निकल के, प्रीमियम बहुत अच्छा है उसके अंदर में। पीछे में ट्रम्प टावर्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग साइज 3,500 स्क्वायर फीट, 4,500 6,000 स्क्वायर फीट, बहुत अच्छा प्रीमियम निकल के आया है, नियरली डबल के आसपास प्रॉपर्टी आ चुके हैं। आपका पायनियर अराया एंड प्रेसिडिया स्टार्टिंग साइज समवेयर अराउंड 3,000 प्लस स्क्वायर फीट, हाँ जी, और आपका भी सेम ही प्रीमियम है। उसी नजरिए से अगर हम कहीं ना कहीं कंसीडर करें कि आपने 3 BHK ना बना के 2 BHK बहुत बड़ा साइज का बना है, उसी तरीके का प्रीमियम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर तो में? देखो क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये जो प्रीमियम अगर बड़े अपार्टमेंट्स में आया था तो थोड़ा सा उस टाइम पे डिमांड सप्लाई गैप था, बिकॉज सडनली लोगों को कोविड के बाद वर्किंग फ्रॉम होम का वो हो गया, जिसमें हस्बैंड वाइफ को अलग अलग रूम चाहिए था वर्क करने के लिए, जिसमें बच्चों को अलग रूम चाहिए था। फिर ट्रेंड ये बड़ा बनता जा रहा है कि जहाँ पे इंडिविजुअल बच्चों को, जिनके 2 बच्चे भी हैं, दोनों को अलग अलग रूम छोटी एज से ही चाहिए होता है। तो सडनली देयर वाज अ ट्रेंड इन द सोसाइटी कि बड़े घर चाहिए और उनको मल्टीपल बेडरूम चाहिए, और वो ट्रेंड फॉलो किया। तो जब डिमांड सप्लाई मिसमैच था उस टाइम पे 4 बेडरूम की अवेलेबिलिटी कम थी और डिमांड ज्यादा थी, सडनली 3 बेडरूम 2 बेडरूम की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, तो मिसमैच में हर टाइम एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। जैसे मैंने अभी बोला अपने प्रोडक्ट के लिए भी, जब डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो उस टाइम पे एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। राइट। और धीरे धीरे जब मार्केट स्टेबलाइज होगी, अब जैसे जैसे अब 4 बेडरूम या बड़े साइजेस की इन्वेंट्री ज्यादा आएगी मार्केट में, डिमांड सप्लाई थोड़ा सा वो होगा, तो धीरे धीरे एप्रिसिएशन लेवल होगी। अब जैसे इमार ने अभी लॉन्च किया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इमार ने बड़ा स्मार्टली मार्केट को देखते हुए छोटे साइजेस लॉन्च करे, बिकॉज उनको लगा कि बड़े साइजेस का थोड़ा सा इस ब्रैकेट में इवन उन्होंने एपेटाइट 4 BHK के अंदर भी वेरिएशन दिया
एक विदिन 3000 स्क्वायर फीट एंड अबाउट 3000 स्क्वायर तो फीट। उन्होंने ना एक ओवरऑल टिकट साइज देखा, क्योंकि पर स्क्वायर फीट रेट काफी बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफी बढ़ गया है, बिकॉज Right. इन्फ्लेशन तो हो ही रही है, कंट्री जैसे जैसे ग्रो कर रही है। तो जो पहले 2-3 हजार रुपए या 4 हजार रुपए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था, आजकल 10-12 हजार रुपए। राइट। हमारा तो अभी प्रीमियम प्रोजेक्ट नेक्स्ट लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे 16-17 हजार रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आने वाला है। तो ऑब्वियसली अब वो एक क्वालिटी अगर हम देंगे तो आजकल एवरीथिंग कॉस्ट मनी, बट इंडिया में क्या हो गया है, एक मार्केट डेवलप हो गई है लग्जरी की, जिनको वो स्पेक्स चाहिए। स्पेक्स में अब कॉस्ट तो लगता ही है, बट अब मार्केट है तो हम डिलीवर करेंगे उस मार्केट के हिसाब से। और जो ये अल्ट्रा लग्जरी आपने बताया जो आपका अपकमिंग लॉन्च है, ये कहाँ पे और किस तरीके से, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये यही है इसका लैंड बैंक, बट अभी क्योंकि अंडर डिस्कशन है तो अभी मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। तो once the RERA comes and everything, then I'll be able to tell a little more about the project. अभी हमारा सारा फोकस, जैसे मैंने बोला, हम एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं, रहते हैं। This is something again Uber luxury kind of thing. This is a Uber luxury because I think अब देखो क्या हुआ है कि मार्केट में बड़ी सारी सेगमेंट्स हैं। तो there is a luxury segment which is I would say 6 से 10 करोड़ का रेंज। Then there is a Uber luxury, मतलब कि उसके ऊपर वाली एक सेगमेंट है 20 से 30 करोड़ का रेंज, और फिर 50 करोड़ जो हमारी कैमेलियर्स और इन सब वाली सेगमेंट भी है। तो ये जो एक मिड सेगमेंट थी 30 करोड़ वाली या वो वाली, आई थिंक धीरे धीरे सबके एस्पिरेशन बढ़ रही हैं, सबकी वो जैसे जैसे वो ग्रो करें। वैसे ये सारे डिस्कशन के बाद में जो हमने पायनियर अराया की और जो आपका कुछ नया आने वाला जिसका आपने बताया, सो दिस विल बी गोना लाइक समथिंग मोर अपग्रेडेड एंड अपडेटेड देन दीस प्रॉपर्टीज एक्जिस्टिंग। दिस विल बी, देखो ये वैसे मुझे ऐसा प्रेसिडिया अगर लग्जरी के स्केल में 1 to 10 में अगर 5 था, और अराया सपोज 6-7 था, 54 अगर जो हमने लास्ट वो किया था 8 था, तो ये 20 होने वाला है। तो इट विल बी दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और क्या रेट की उम्मीद है सर? वैसे खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर अराया की रीसेल 35,000 चल रही है, तो आप खुद एंटिसिपेट करते हो, जहां पे अराया जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम था, आज की डेट में जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जाने वाला है वो अराया से डबल है, इवन इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हुए। बिकॉज अगर अराया में 5,000 रुपए का माल लगा था, तो इसमें 10,000 रुपए का माल लगना है। करेक्ट। उसी मतलब कि उस पैरिटी में, नॉट इन्फ्लेशन को गिनते हुए। अगर हमारी डिलीवरी अराया से डबल होने वाली है एज ए प्रोडक्ट, तो और अराया का अगर 35,000 प्राइस चल रहा है, तो आई वुड लेट the market determine what should be the price, and you should put in comments okay this is the price we should launch at. मैं वैसे कहीं पढ़ रहा था कुछ और वर्टिकल्स भी हमारे पायनियर अर्बन के, like other source of income like from rentals। नहीं, mainly rentals ही हैं। देखो हमने क्या किया है कि although ये जो अब हमारा ये वाली बिल्डिंग है जहाँ बैठे हुए हैं हमारा अपना है, तो ये कम्प्लीटली लीज मॉडल पे है, ताकि एक हर बिल्डर के लिए क्या होता है, एक फिक्स कॉस्ट होते हैं कि प्रोजेक्ट्स तो अप डाउन होते हैं, कभी बीच में प्रोजेक्ट है नहीं है, तो एक फिक्स कॉस्ट सस्टेन करने के लिए एक रेंटल यील्ड, बड़ी रेंटल रिटर्न बहुत जरूरी होता है। तो जैसे ये हमारी बिल्डिंग अपनी है, इसका बहुत अच्छा, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टेनेंट्स हैं, जोमेटो है, सन लाइफ है, नहीं जोमेटो, सन लाइफ और ऐसे अच्छे टेनेंट्स हैं। तो हमारा कम से कम क्या है कि ये चीज एश्योर्ड है कि अगर कभी भी कोई बाय चांस स्लो डाउन आए, तो स्टाफ की सैलरीज वैलरी सब सिक्योर्ड होती हैं। जो लोग रीसेल में ट्राई कर रहे होते हैं, इफ आई परचेज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एट एक्स रेट, अगर आज मैं उसको 4-5 साल बाद मार्केट में रीसेल कर रहा हूँ, आई गॉट सम ऑफ द अप्रिसिएशन जिसको मुझे लेना है, लेकिन वो बी फॉर्म में, डेल्टा फॉर्म में आता है, जो मार्केट में डिमांड होती है और स्टैंडर्ड है मार्केट के अंदर। बिल्कुल जो नए कस्टमर्स है, नए बायर्स है, दे ऑल आर कॉर्पोरेट कपल्स, जिनको लोन से पैसा लेना है, 10-15-20% अपनी पॉकेट में है, सो उनके पास में डेल्टा अमाउंट नहीं होता है, वो रीसेल ले ही नहीं सकते। चलो ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो अपार्टमेंट मार्केट है, तो अपार्टमेंट मार्केट में आजकल ये मार्केट इवॉल्व हो गई है, और मैंने तो मेजॉरिटी कस्टमर्स अब ऐसे देखे हैं, दे आर रेडी टू पे कैपिटल गेन्स एंड एवरीथिंग, बट दे वांट 100% इन ए ओनली। एंड ये जो थोड़ी सी प्रैक्टिसेस हैं, आई थिंक गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है इस पे, एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड द टैक्स स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग हैव बिकम फार मोर फ्रेंडलियर। तो उस पर्सपेक्टिव से अपार्टमेंट मार्केट में मैंने मतलब कि काफी सारे फुल ए वाले वो देखे, तो आई थिंक द मार्केट इज डेवलप्ड। आई थिंक उस तरीके से रियल एस्टेट को थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी मिली है, इट हैज बिकम अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड अ मोर ट्रांसपेरेंट मार्केट, बिकॉज़ एवरीथिंग इज नाउ इन ई ट्रांजैक्शन। वैसे अभी के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन और विजन क्या है कि हम
एक्चुअली आने वाले अगले 10-15-20 साल में क्या करना है, कुछ ऐसी प्लानिंग है? अभी हमारा ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है हम्म। जेके ग्रुप के साथ है, जेके ग्रुप के साथ। जो ये अद्वैत कर रहे अद्वैत के हैं, साथ। तो जेके ग्रुप के साथ काफी सारे लैंड बैंक्स हैं। हम एक हम्म। प्रोजेक्ट कानपुर में उनके साथ डेवलप कर रहे हैं। फिर ये सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स भी हम अक्रॉस द कंट्री डेवलप करना चाहते हैं उनके लैंड बैंक्स में। हमारा अपना लैंड बैंक भी है जो हम एज पर द मार्केट ट्रेंड्स डेवलप करेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट व्हाट शुड आई से कि वेरी ग्रीडी काइंड ऑफ अ डेवलपर कि हम सब कुछ आज ही कमा लें। हम एक एक करके वी वांट टू क्रिएट गुड एक्सपीरियंसेस, वी वांट टू क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट फॉर आवर रेजिडेंट्स। एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अभी आने वाला हमारा प्रोजेक्ट बड़ा मतलब इट्स टिकट साइज और फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। 7-8 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इट इज गोइंग टू कीप अस ऑक्युपाइड फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. Similarly, we are coming out with a very high-end commercial project जो न्यूज में है ही, हाइंस के साथ पार्टनरशिप में हम डेवलप कर रहे हैं, which is going to be, I think, one of the most iconic commercial buildings in Delhi NCR, maybe all over India. और वो कहाँ पे डेवलप करने वाले? यहीं पे हमारे साथ वाली जो मेन रोड पे साइट है, कमर्शियल साइट। अच्छा, ओके। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक अगले 4-5 सालों के लिए तो वी हैव आवर हैंड्स फुल। एक एरिया का डिस्कशन करते हैं सर। हाँ जी। अभी तक पिछले 2-3-4 साल तक ऐसा हुआ करता था, नॉर्थ दिल्ली के क्लाइंटेज, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कोई भी हो दिल्ली की क्लाइंटेज, हमारे पास मोर ओवर दिल्ली की क्लाइंटेज होती है 75%, राइट सर? दे आर मोर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एक्सटेंशन रोड कि दिल्ली से आप एमजी रोड से एंटर किया, NH8 से एंटर किया, एमबीएन से सीधा है, गोल्फ कोर्स रोड पकड़ के एक्सटेंशन रोड उनके लिए सबसे ज्यादा अप्रोचेबल हुआ करता था। यहीं पे ही डिमांड हुआ करती थी, और वो डिमांड धीरे धीरे स्विच होती दिखाई देती है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ में, क्योंकि अब द्वारका एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो चुका है। 6-8 महीने पहले उसका इनॉग्रेशन हो गया। नाउ पीपल कमिंग फ्रॉम साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, जैसे ही वो शिव मूर्ति के पास में आते हैं, राइट टर्न लेके सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे, नाउ दे आर exploring option over Dwarka Expressway only. People are wanting to upgrade their quality of life. Quality of life में क्या होता है? टाइम एक बड़ी फैक्टर होता है। People want to cut their travel time to office. अगर हम ऑफिसेस देखोगे तो जितने भी ऑफिसेस और वो हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे है, चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे, साइबर सिटी, उद्योग विहार, इसी एरिया में है जो प्रीमियम ऑफिसेस है। अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है और एम्प्लॉयमेंट के पास ही आप रहना पसंद करोगे, ताकि आप कम से कम अपना कम्यूटिंग टाइम बचाओ और वही टाइम अपनी जो अच्छी प्रीमियम सोसाइटीज हैं, जितनी फैसिलिटीज हैं, जिम है, पूल है, सर्विसेज हैं, तो आप एंजॉय करना चाहते हो उन फैसिलिटीज को। तो उस हिसाब से आई एम नॉट सेइंग दैट द्वारका एक्सप्रेसवे इज नॉट गुड, दैट इज इट्स ओन पोटेंशियल, बट आई थिंक आफ्टर गोल्फ कोर्स रोड द सेकंड मोस्ट प्रीमियम डेस्टिनेशन would continue to be Golf Course Extension Road only, and it will always command a higher premium and a higher propensity than Dwarka Expressway, even in the long run. एक छोटा सा ब्लैक डॉट आता है एक्सटेंशन रोड के ऊपर में, कि एक्सटेंशन रोड पे हैबिटेशन है, कमर्शियल्स है, मेट्रो की भी एक तरीके से कनेक्टिविटी बहुत काफी पास में हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। अभी तक रोड की वाइडनिंग, रोड का एक्सपेंशन, एलिवेशन, अंडरपासेस जो हम फ्यूचर बता रहे होते हैं, वो अभी तक बिल्कुल पिक्चर में नहीं है। नहीं, तो अभी क्या हुआ है कि विद द न्यू दिस टाइम व्हाट इज वन वेरी गुड थिंग हैज हैपेंड, देयर इज अ stable government in Haryana and the same government in the center, and whatever initial discussions we have had with the new chief minister and the government officials, that there is recognition in the government that there needs to be focus on Gurgaon from an infrastructure perspective, because अगर यहाँ पे this is the center of economic development, सारी employment यहाँ पे generate हो रही है, maximum taxes यहाँ से generate हो रहे हैं, तो I think एक commensurate share of investment from an infrastructure viewpoint should definitely be there, so that the area develops further. कुछ टाइम पहले आगे हुआ करता था एक्सटेंशन रोड के, एक्सटेंशन रोड गोल्फ कोर्स के बाद में, अब द्वारका एक्सप्रेसवे के ज्यादा चर्चे हैं मार्केट के। द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या है, देखो उसकी अपनी उस तरफ से एक एडवांटेज हो सकती है, बट आपको पता है एक गुड़गांव की नेचुरल टेंडेंसी रही है दिस साइड ऑफ NH8, तो ये जो इस तरफ ऑफ NH8 की एक वैल्यू है और एक स्नॉब वैल्यू है, एक प्रीमियमनेस है, वो हर टाइम मेंटेन रहेगी। तो उसको लेके आई थिंक इन्वेस्टर्स यार उनको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि यू नो देखो डिमांड इतनी बढ़ रही है, any area, I'm not saying that Dwarka Expressway is bad, it has its own potential, but I think Golf Course Extension Road will always command a premium over Dwarka. कुछ नई बड़ी डेवलपमेंट्स भी आने वाली है, बाय ओबरॉय, DLF,
धीरे धीरे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं और जैसे जैसे एफ्लुएंस बढ़ रही है, पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग दैट let us not compromise on our home and let us give the right investment and let us live comfortably. Because आजकल जो ट्रेंड ये है, with more and more both husbands and wives are working, तो इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं ये मिडिल लेवल में। अभी देखो आज की डेट में जो 30-32 लाइक माय ओन डॉटर एंड माय सन इन लॉ, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग फॉर कंसल्टेंसी, दे आर अर्निंग वेल। सो जैसे जैसे इस टाइप के लोग और ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो इन देयर करियर, दे विल हैव बिगर बजट्स, so everybody wants to expand their lifestyle. So sir, at the end हमने इतने सारे डिस्कशन के बाद में बहुत सारी चीजें निकाली है जो शायद होम बायर को ना पता हो अभी तक, एक्सटेंशन रोड के बारे में, पायनियर के बारे में, सारी चीजों को समराइज करके आप पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से होम बायर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन देते हो, क्या आपके सजेशन रहने वाले हैं? So 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, गुड़गांव मार्केट एज अ पोटेंशियल, जो मैंने कवर भी किया, because Gurgaon is becoming the center of employment creation. Right. सारी मल्टीनेशनल्स है, बड़ी लार्ज कंपनीज, जो प्रीमियम एम्प्लॉयमेंट है गुड़गांव में क्रिएट हो रही है। अब तो नया ट्रेंड है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बॉम्बे और अदर शहर को छोड़ के भी दिल्ली में सेटअप कर रही है, बिकॉज दिस इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहीं पे आ रही है। तो गुड़गांव उस तरीके से अपना पोटेंशियल एक्सपैंड करता रहेगा, चाहे नोएडा बढ़ेगा, बाकी एरियाज भी बढ़ेंगे, लेकिन गुड़गांव की पोजीशन को कोई बीट नहीं कर पाएगा। बिकॉज टैलेंट के लिए भी क्या हो गया है कि गुड़गांव इज द बेस्ट हब फॉर प्रीमियम टैलेंट और हायर मैनेजमेंट टैलेंट आज की डेट में। और काफी सारे स्टार्टअप्स भी है जो गुड़गांव स्टार्टअप्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, सब कुछ है। नंबर 1, यू आर वेरी सेफ विद गुड़गांव। मार्केट में थोड़े बहुत ठहराव आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देयर इज नो प्रॉब्लम। Extension Road has a lot of potential after Golf Course Road. I think Dwarka Expressway and other areas come post that. This is the most premium location after Golf Course Road. Third is when you are deciding on the property, if you are moving for an under construction property or this thing, builder की credentials देखना बड़ा जरूरी है, उनकी delivery और उनके past projects में उनके क्या experiences create हुए हैं, उनकी रीसेल वैल्यू कंपेयर टू अदर रीसेल वैल्यू इज अ वेरी गुड बैरोमीटर ऑफ थिंग क्या डिलीवर करते हैं एक्सपीरियंसेस। बिकॉज खाली प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं होती, आप क्या एक्सपीरियंसेस डिलीवर करते हो, कैसे क्लब मैनेज करते हो, कैसे रेस्टोरेंट मैनेज करते हो, ये सब चीजें एक्सपीरियंस क्रिएट करने में उनका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और अगर आप प्राइस एप्रिसिएशन भी देखोगे तो डीएलएफ की प्रॉपर्टीज में क्यों शुरू से सुपीरियर प्राइस एप्रिसिएशन है, उन्होंने सारी सर्विसेज खुद मैनेज करी है। सिमिलरली हमने भी बड़ी सर्विसेज खुद मैनेज करी, इसीलिए हम एक कंसिस्टेंसी दे पाए सर्विसेज की। पायनियर की ये लेगेसी रही है कि we have delivered not only superior construction but a superior service and reasonably low density kind of projects and all. थर्ड अगर हम बात करें, जो हमने बात करी वो सीनियर लिविंग की। सीनियर लिविंग इज अ वेरी वेरी गुड अपकमिंग मार्केट, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स या पॉपुलेशन ट्रेंड्स हो रहे हैं, जिसमें पीपल लाइक मी who will be seniors soon who are like empty nesters, जिन्होंने बच्चे सेटल कर दिए, who are reasonable financial security they have, we would want to now live in a society जहाँ पे हमें सिक्योरिटी तो हो ही हो, बट हमारे लिए एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो और हम हैसल फ्री जिंदगी जिए। इसमें हमें ना मेड की चिंता हो, ना हाउसकीपिंग की चिंता हो, ना खाने की चिंता हो, और हमारे लिए एक अच्छा प्रीमियम लग्जरी क्लब हो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, जहाँ पे हम अपनी लाइफ पे एंजॉय कर पाए और एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सके। तो उस तरीके से आई थिंक अद्वैत जो हमारा प्रोजेक्ट है, नॉट ओनली इट्स लोकेशन in the heart of Nirvana country, in the middle of all facilities, including hospitals, shopping centers and everything, I think we have got a very good offering, and I believe this project will give very, very superior returns based on the demand and supply equation which I explained. जैसे हमने 4 bedroom की बात करी, 4 bedroom के prices इसलिए बढ़े, डिमांड सप्लाई का गैप था। इसी सीनियर लिविंग में I anticipate जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा 2026 एंड 2027 बिगिनिंग में, तब तक जो डिमांड फॉर सीनियर लिविंग होगी बहुत ज्यादा होगी। टोटल सप्लाई इन द एरिया इन सीनियर लिविंग इज हार्डली 2000-3000 अपार्टमेंट्स। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई फील people who are looking at even in their who are currently in their 40s or 50s are looking at a property investment, I think this Advait makes a lot of sense for them, and it's a
by the time the project comes for delivery, they'll have 3-4 years of working left. They'll be maybe 55 or something. They can move in immediately, initially stay with their kids, and as they settle their kids and their kids go abroad, they can enjoy a very good living with like-minded people and the same age group in the society. Your viewers and people who have subscribed to your channel and those who are seeing will get a holistic view on the Gurgaon market, on what are the different offerings which are there, and the near-term potential. Obviously, from an investment viewpoint also, people are looking at it from an investment viewpoint. You have to be a little more choosy. It is not that returns will not be there, but now don't invest in every builder and every project, because same returns or exits might be difficult in difficult projects. Because in reputed builders and people who have delivered, exit मिल जाएगा. अगर आपको कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, आपने एंट्री तो मार लिया, आपको एग्जिट भी तो चाहिए होगा ना. इमरजेंसी हो जाए, कल को इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है, होल्डिंग पावर आपके पास नहीं है, तो काफी बिल्डर्स ऐसा होगा जब आप एंट्री तो मार लोगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे. तो इसलिए you should be very careful. With Pioneer, you are very safe, just like DLF, that you'll have no problems on exit. And you will get a superior product, superior appreciation, and superior lifestyle if you are planning it for end use. That is what I have to say. So, and thank you for giving this opportunity. It was a pleasure, and I think you're doing again. I want to say you're doing very good work in educating, because very few people taking this initiative or giving genuine information to buyers. Done, sir. Thank you very much for your appreciation.